فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، آج محمد مفتاحی کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، جو پیشانی پر کالا نشان ہو جاتا ہے جس کو نماز کا نشان بولتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عام طور سے جو کالا نشان پیشانی پر اور ماتھے پر ہو جاتا ہے وہ سجدے میں بار بار پیشانی کے زمین پر ٹکنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے نماز کا نشان کہہ دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ نشان صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو 5 وقتہ یا نوافل اور تہجد کے پابند ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جو 5 وقتہ نمازی بھی نہیں ہوتے، کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں۔ یہ زمین پر پیشانی کے ٹکانے کی فرق کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ صرف نماز ہی کا نشان ہے یہ تو صحیح نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی صراحت ہے۔ البتہ بنیادی طور پر اس کی وجہ بار بار پیشانی کے زمین پر ٹکنے کی وجہ ہے۔ ولی الرحمن بستوی صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، نمسکار یا نمستے کہنا کیسا ہے؟ نمسکار اور نمستے یہ دونوں ہی ایسے الفاظ ہیں جو غیر مسلموں کے مذہبی شعار کا حصہ ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی تعظیم کے لیے آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ ایسے الفاظ جن میں جھکاؤ یا دوسروں کے سامنے تعظیم کا ایسا پہلو ہو جس سے جھکاؤ کا اظہار ہوتا ہو، خواہ وہ الفاظ ہی کے ذریعے ہو، شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے کسی غیر مسلم کے جواب میں مسلمان کا نمستے یا نمسکار کہنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کرتا ہے اور وہ سلام نمستے اور نمسکار سے ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب یا تو دیں گے عربی زبان میں ہداک اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، یا یہ کہ ہم اس کا جواب دیں گے آداب کے ذریعے سے، وہ ہمیں نمسکار یا نمستے کریں تو ہم کہیں گے آداب۔ اور اگر ہمیں کبھی اپنی بات شروع کرتے ہوئے انہیں سلام کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم نہ تو السلام علیکم کر سکتے ہیں اور نہ ہی نمسکار اور نمستے کر سکتے ہیں، تو ہم ایسے موقع پر کہیں گے سلام علی من اتبع الہدا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دنیا کے کافر بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے تھے تو اپنے لیٹر اور خط کا آغاز سلام علی من اتبع الہدا سے فرمایا تھا۔ لہٰذا نمستے اور نمسکار کہنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سہیل پاشا خان مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں، جمعہ کے دن سورہ کہف، سورہ دخان اور سورہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا افضل ہے یا جمعہ کی نماز کے بعد افضل ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، احادیث میں جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ سورہ دخان پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، لہٰذا جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورہ کہف کا تو اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات ہی میں سورہ کہف پڑھنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من قرأ سورة الکہف لیلۃ الجمعۃ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھے گا اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک روشنی کر دی جائے گی،
और एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफ़िज़ 10 आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ़ उसिम मिन दज्जाल, कि जो आदमी सूरह कहफ़ की शुरू की 10 आयतें हिफ्ज़ कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक दूसरी रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने पर दूसरी फजीलत भी बयान फरमाई है। वो ये है कि जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दो जुमाओं के दरमियान नूर रोशन फरमाते हैं। इन रिवायात से ये बात मालूम होती है कि सूरह कहफ़ का वक्त उसी वक्त शुरू हो जाता है जब जुमा की रात शुरू होती है, लिहाजा जुमे की रात में भी सूरह कहफ़ पढ़ी जा सकती है और जुमा के दिन भी सूरह कहफ़ पढ़ी जा सकती है, जुमा से पहले भी और जुमा के बाद भी, लेकिन वो जुमा के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पढ़ ली जाए, तभी ये तमाम तर फजीलतें हासिल होंगी। अब्दुल्ला रहमानी कमेंट बॉक्स में मालूम करते हैं, घर के बिस्तर पर औरत का नमाज पढ़ना कैसा है? जी हाँ, अगर बिस्तर पतला है और पाक भी है तो उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। कोई पेशाब या कोई दूसरी गंदगी बिस्तर पर नहीं है और उस बिस्तर का गद्दा इतना पतला है या ये कि उस पर चादर बिछी हुई है जिस पर पेशानी आसानी से टिक जाती है, वो गोया नीचे सजदा करने वाली जगह सख्त है, तो फिर उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर बिस्तर नापाक है या ये कि उस पर फोम का गद्दा है या ये कि दूसरा कोई ऐसा गद्दा है जिस पर जब सजदा करते हैं तो पेशानी एक जगह टिकती नहीं है, सजदे की जगह सख्त नहीं है, तो फिर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होगा। सबीर खान साहब का सवाल है, इस्लाम में वकालत की क्या हैसियत है? जी हाँ, वकालत बिल्कुल ये इस्लामी शरीयत का हिस्सा है, इसीलिए इस्लामिक लॉ की जो किताबें हैं, जो फ़िक़ह की किताबें कही जाती हैं, खा वो अरबी की हों या ये कि उर्दू की हों, उनमें वकालत के मसाइल भी बयान किए जाते हैं। वकालत कहा जाता है किसी झगड़े में, किसी मामले में दूसरे आदमी की नियाबत करना। आजकल के ज़माने में चूँकि आम आदमी कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसको अपना कोई लॉयर या वकील बनाना पड़ता है ताकि वो अदालत में उसकी तरफ से पैरवी कर सके। लिहाजा अगर कोई आदमी किसी सही और सच्चे मामले की पैरवी करता है और उस पैरवी करते हुए, वकालत करते हुए झूठ नहीं बोलता या ये कि किसी नाजायज़ मुकदमे की वकालत नहीं करता, किसी आदमी ने किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, फिर जब झगड़े की नौबत आई तो उसने उस नाजायज़ ज़मीन का किसी को वकील बनाया और दूसरा आदमी वकील बन भी गया, तो ऐसी वकालत जायज़ नहीं होगी, चूँकि वो नाजायज़ चीज़ की वकालत कर रहा है या ये कि वकालत करते हुए झूठ बोल रहा है, तो ये वकालत बाइस गुनाह होगी। लेकिन अगर कोई आदमी किसी सही और सच्चे मामले की वकालत करता है और उस पर अपना मुआवजा भी लेता है और उसमें झूठ नहीं बोलता, तो ये अपने दूसरे भाई की भी खिदमत होगी और गोया मज़हब इस्लाम के अहकाम को फॉलो करने की वजह से सवाब का भी बाइस होगी। सनाउल्लाह रहमानी साहब का सवाल है, मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करना कैसा है? मस्जिदों का वजूद और उनका क़ियाम वो 5 वक्ता नमाज के लिए है कि 5 वक्त की नमाज़ों की जमाअत मस्जिद में कायम की जाती है। नमाज जनाजा के लिए मस्जिद का वजूद और क़ियाम नहीं है। यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के करीब में नमाज जनाजा के लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर फरमाई थी जहाँ मुसलमानों की नमाज जनाजा अदा की जाती थी। और मशहूर वाक़या है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी के जो हबशा का बादशाह था उसके मरने की, उसके इंतकाल की ख़बर मिली, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। आप चंद सहाबा को लेकर उसी मखसूस जगह तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपने नमाज जनाजा अदा फरमाई, मस्जिद में आपने नमाज जनाजा अदा नहीं फरमाई। और एक रिवायत में है, अबू दाऊद की रिवायत है कि जिस आदमी ने जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ी उसके लिए कोई सवाब नहीं होगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बिला उज़्र और बिला ज़रूरत मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना ये मकरूह है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, बारिश हो रही हो या ये कि मैदान में कीचड़ हो
जिस की वजह से नमाज जनाजा पढ़ना मुश्किल हो, या शहर वगैरह में नमाज जनाजा के लिए कोई जगह मौजूद ना हो कि जहां नमाज जनाजा अदा की जा सकती हो, रोड पर पढ़ने में भी चलने फिरने वालों को दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी मजबूरी के मौके पर मस्जिद में भी नमाज जनाजा की गुंजाइश है। लेकिन उसमें भी बेहतर और अफजल तरीक़ा यह है कि जनाजे की चारपाई वो मस्जिद के हिस्से से बाहर हो, इमाम साहब चंद मुख्तदियों को लेकर मस्जिद के हिस्से से बाहर खड़े हों और फिर बकिया मुख्तदी मस्जिद में भी खड़े हो जाएं, तो नमाज मकरूह भी नहीं होगी और नमाज जनाजा अदा भी हो जाएगी। महराज भाई कमेंट बॉक्स में मालूम करते हैं, अगर हमने जैकेट ख़रीदी और हमने उसको पहनकर नमाज अदा कर ली, फिर मालूम हुआ कि वो जैकेट खनजीर की खाल से तैयार शुदा है, तो उसका क्या हुक्म है? जी हाँ, अगर हमें 100% यकीनी तौर पर ये बात मालूम हो गई है कि ये खाल उसी खनजीर की सूअर की खाल से तैयार शुदा है, तो चूँकि खनजीर ये नजीसुल ऐन होता है, उसको कितना भी पाक कर लिया जाए वो नापाक ही रहता है, लिहाजा ऐसे जैकेट जो खनजीर से तैयार शुदा हो उसमें नमाज नहीं होगी। जो पढ़ी गई है उस नमाज को भी दोहराना और उस नमाज का इआदा करना ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि वो खनजीर की खाल से तैयार भी हो, हमें पता हो, सिर्फ अफवाह ना हो कि ये चीज़ खनजीर से तैयार हुई है। मोहतरम सामीन नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो सवाल आपसे पूछा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल कहाँ हुआ, तो जवाब है मकाम अबवा। जिन्होंने सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दिए हैं उनके नाम आपके सामने पेश हैं। मुईनुल इस्लाम बिन मौलाना दिलावर हुसैन, मोहम्मद सऊद आलम नागलोई, राशिद अनवर बिन मोहम्मद मुजाहिद, रिहान बिन मोहम्मद नसीम अख्तर, आदिलुज़्ज़मा मकराना, वलीउर्रहमान बस्तवी, फ़राहिम अब्दुल्ला, अरशद अली बटला हाउस। और आज का सवाल आपके लिए यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सही जवाब बताने वालों के नाम आइंदा वीडियो में बताए जाएंगे। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सदक़ा जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और अपने सवाल और जवाब हम तक यूँ ही पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।